إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین یا ربی یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹرز، انشاءاللہ آج ہم اپنی جو حدیث نمبر 18 تھی، جو کہ مثالی مومن اس کا تھا، اور اس حدیث کو ہم نے اس کے راوی دیکھے تھے ہم نے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلی بات تقویٰ کی ہوئی تھی کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو سیکنڈ اس کا پارٹ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ ہو جانے کے بعد نیکی کرو۔ پہلا تھا اتق اللہ حیث ما کنت، اب ہے واتبع السیئۃ الحسنہ تمحوہا۔ واتبع السیئۃ الحسنہ یعنی گناہ کرنے کے بعد کرو کیا؟ الحسنہ، حسنہ کرو، تمحوہا وہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ کس کو مٹا دیتا ہے؟ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ترمذی کی یہ حدیث ہے، اور یہاں پہ جو تقویٰ میں اس بک کے اندر تقویٰ کو بالکل یہ بتایا گیا ہے بالکل اینڈ میں آ کے کہ تقویٰ کے 3 درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک ادنا درجہ اور ایک ابتدائی درجہ یہ ہے کہ آدمی ایمان لا کر کفر اور شرک کی باتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے، ایک تو یہ آ گیا، اور دین کے بنیادی فرائض پورا کرے۔ اس کا دوسرا درجہ یہاں پہ آ گیا کہ ہر اس بات اور کام سے پرہیز اور کنارہ کشی کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ پھر تیسرا درجہ یہ آتا ہے جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وقت اور ہر گھڑی اپنے دل کو غیر اللہ سے پاک کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مشغول ہو جانا۔ یہ تو پہلے تقویٰ کی بات آ گئی۔ اب جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ ہے برائی کو مٹانا۔ تو پیاری سسٹرز، یہاں پہ جو چیز جہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے وہ یہ والی بات ہے کہ جب برائی کو مٹانا یا گناہ کے بعد اچھا کا عمل کرنے سے پہلے جو پہلی چیز ہمیں ریکوائر ہے وہ ہے توبہ اور استغفار۔ یہ وہ پہلی چیز ہے کہ جو ہمیں اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگی، کیونکہ دیکھیں جب تک انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اور جب تک اس کو دل میں برا محسوس نہ کرے، اس کے بارے میں وہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، تو تب تک جتنی مرضی برائیوں کے بعد نیکیاں کریں گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز جو آتی ہے اس سیکنڈ پوائنٹ کے اندر وہ یہ آتی ہے کہ پہلے استغفار کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے۔ استغفار میں یہ ہوتا ہے کہ انسان، کیونکہ پہلی شرط اس حدیث میں تقویٰ کی لگائی گئی ہے، تو جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکتا ہے تقویٰ کی وجہ سے، پھر وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا ہے، اور جب مجرم سمجھتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، اور جب وہ معافی مانگتا ہے تو معافی آپ کس سے مانگتے ہیں؟ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ میں نے بہت برا کر دیا، میں تو بہت میں بہت ہی لو ہستی ہو گئی ہوں، یا میں بس اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، یعنی اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنا۔ تو اس وقت انسان اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر لیتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں گناہ کی معافی کے وقت جب ہم جو دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں کرتے ہیں، اس وقت دعا کی کیفیت جو ہے نا وہ بالکل اور ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارے
आवाज़ की कैफियत और होती है, हमारे दिल की कैफियत होती है, और यही कैफियत असल में अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसी कैफियत जब अल्लाह ताला को पसंद आती है तो ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ फरमाते हैं, बल्कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शिश करने के बाद बहुत सी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि पहली चीज़ ये है कि तौबा इस्तग़फ़ार करे, फिर दूसरी चीज़ है कि अपने नफ्स को बुराई करने पर सज़ा दे, यानी कोई बदनी इबादत करे जैसे नफल नमाजें, रोज़े, तिलावत, ज़िक्र और अज़कार वगैरह करे। अब ये पॉइंट आ गया कि अब कोई बदनी इबादत करे, इसलिए कहते हैं ना कि जब आपसे कोई अपने आप को पनिश करने के लिए कोई ना कोई हमारे पास हमने कोई सजा रखी हो, जिस तरह खुदा हर हालत में गीबत से बचे, अगर गीबत हो जाती है तो ये है कि डोनेशन रखे कि इतने पैसे मैं निकालूंगी, और माफी तो हमें मांगनी ही मांगनी होगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि अगर बुराई का ताल्लुक अब माफी के हवाले से चीज आ जाती है कि दो तरह की गुनाह है। एक है हकूक अल्लाह में कमी करना, कुछ मिस कर देना, जैसे कोई नमाज कज़ा हो गई है या कुछ और मिस हो गया तो अल्लाह से माफी मांग लेना। और एक दूसरी चीज क्या होती है, किसी की हक तलफी करना, और किसी के हक तलफी करना है तो उसमें अल्लाह से माफी नहीं मिलेगी, बल्कि क्या होगा कि जिसकी हक तलफी हुई है इससे माफ कराने से ही माफी मिलेगी। ये चीज भी आ जाता है कि अगर आपने किसी कोई ऐसी बुराई कर दी है और आपको जाकर उनसे माफी मांगनी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि माफ कराने में मुतल्लिका शख्स के सामने कसूर के इतराफ का इशारा भी किया जाए। जिस किसी की कीमत की है तो कहे कि मैंने आपके बारे में कुछ नामुनासिब बातें की होंगी जो मुझे करनी नहीं चाहिए थे, मुझे आप माफ कर दें। अगर कोई ऐसी बात जो उसे मालूम नहीं है और मालूम होने से इसे ज्यादा तकलीफ और दुख होगा तो उसे जाहिर करे और ऐसी ही माफी तलब करे। अल्लाह ताला रसूल अकरम के फरमानों से मालूम होता है कि नफ्स का मुहासबा किया जाए और इसकी तादीब की जाए। यानी अब इसी टुकड़े में बुराई और को नेकियों से मिटाने में ये आ जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बुराई की है। तो वो जब हम अपने नफ्स का मुहासबा करेंगे, खास तौर पर रहते हैं ना, आपने हदीस भी सुनी होगी, एक सहाबी जो रात को जिनको जन्नत की बशारत हुई थी और वो रात में क्या कहते थे कि मैं रात में सबको माफ करके सोता हूँ, दिल को साफ करके सोता हूँ। तो यहाँ पे देखें सूरह हशर की आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हर नफ्स को देखना चाहिए कि उसने कल क़यामत के लिए क्या बनाया है। और फिर हासिबु क़ब्ल अन तुहासबु, अपने नफ्स से हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो इब्ने माजा में एक दुआ भी बताती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा जल्नी मिनल्लज़ीना इज़ा अहसनु इस्तबशिरू व इज़ा असाउ अस्तगफिरू, कि ऐ अल्लाह मुझे अपने उन बंदों में कर दे जो नेकी करें तो खुश हों और उनसे जब कोई गलती और बुराई गुनाह हो जाए तो तेरे हजूर में वो इस्तग़फ़ार करे, आमीन। तो यहाँ पे ये आ जाता है। और फिर जो है हमने ये भी हदीस में देखा हुआ है कि जब गुनाह करते हैं दिल में एक क्या धब्बा पड़ जाता है, अगर इंसान तौबा नहीं करता तो वो क्या धब्बा बढ़ता चला जाता है और यहाँ तक कि दिल काला हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। और जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह ताला उस दिल को साफ कर देते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो इसमें से इस हदीस में ये निकला वो यही निकला कि ना सिर्फ अपने गुनाहों पे तौबा करें जुबान से, बल्कि अपने अमल से साबित करें, उस पर शर्मिंदा हो, दुआ करें और फिर नेक अमल करें ताकि वो सब जो गुनाह है वो छुट जाए और आइंदा उस बुराई से बचे। तीसरी चीज अब इसमें यहाँ पे आ जाती है, ये वाली बात है। इस हदीस को मैं बुक में से ही पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुझे ऊपर ध्यान है। लेकिन नास बिखुल्क हसना, और यह है खालिक नास से, लेकिन लोगों से मामला करो बिखुल्क हसन, अच्छी अखलाक के साथ। तो यहाँ पे अब हुस्न सलूक की बात आ जाती है।
اچھا، حسن سلوک کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بہتر اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. اور اچھا، آپ میں سب کوئی سسٹر آئے، ٹھیک ہے، اور آ کے اخلاق کے حوالے سے ہم نے جو کچھ پڑھا ہے کوئی ایک چیز بتائیں اخلاق کے حسنہ کو، اگر بالکل پریسائز وے ایکسپلین کرنا ہو تو کیا ہے اخلاق حسنہ؟ کوئی حسنہ کا جو اگر ہم کہیں کہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سنت سے قریب ترین معاملہ ہو. دوسرا یہ کہ جو آپ اپنے لیے پسند کریں، جس طرح سے رویہ ہو، چاہے وہ حق حاصل کرتا، فرض ادا کرتا ہو، وہی آپ دوسرے کے لیے کریں. بالکل. ایک رشتہ تھا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہیں، ایک مسلمان کا آئینہ ہوتے ہیں. اگر ایک جسم کو تکلیف ہو تو وہ پورا جسم دکھ ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ کسی کا کوئی دکھ نہ ہو. یہ تو ایک پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر ماریا. اور پھر یہ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام اعمال میں افضل کون سے؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. تو اخلاق کو ہم نے چونکہ کافی ڈیٹیل میں دیکھا تھا، آپ پچھلی حدیث پہ جا کے اس کے اوپر ضرور دیکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسن اخلاقا، مومنوں میں اکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. اور اخلاق اچھے کے اندر یہ بھی ہے کہ جو تم سے زیادتی کرے تم اسے معاف کرو، جو تم سے قطع تلقی کرے تم اس سے جڑو، اور جو تمہیں تمہارے حق سے محروم کرے تو بھی تم اس کو دو. اور حدیث میں آتا ہے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے سب سے محبوب اور قیامت کے دن میرے سب سے قریب بیٹھنے والے کی خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کیا ضرور. تو آپ نے فرمایا کہ جو خلق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں اس حدیث میں شروع میں تقوی آیا تھا، تو جو محدثین کہتے ہیں کہ حسن خلق تقوی ہی کی ایک صورت ہے، لیکن یہاں پر آپ نے اس کو سیپریٹ امپورٹنس دینے کے لیے مینشن کیا، کیونکہ تقوی ہوگا تو اخلاق اچھا، انسان اپنے معاملات اچھا کرے گا ہی، لیکن سیپریٹ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ذکر کیا تاکہ وہ ہائی لائٹ ہو جائے. ایک جگہ آپ نے فرمایا بے شک حسن خلق کا مالک اللہ کو تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور انبیاء کے سب سے نزدیک بیٹھنے والوں میں سے ہوگا. سبحان اللہ. اب یہاں سے ہم نے جو دعویٰ کے پرپزز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہی ہے نا کہ آپ سورہ ال عمران میں آتا ہے کہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر تم تنخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھپ جاتے. تو کسی چیز آگے کہ دعویٰ کا کام کرنے والوں کے لیے بھی حسن خلق جو ہے کوالٹی وہ ایٹ دا ٹاپ آئے گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہلے اپنے اخلاق سے مشہور تھے. ٹھیک ہے، اور آپ اسی کی بیسس کے اوپر آپ نے دین کا کام شروع کیا تھا. تو اس حدیث سے ہماری تخریج کیا ہوئی کہ 3 نصیحتیں اس میں کی گئی ہیں ایک مثالی مومن بننے کے لیے. پہلی جو نصیحت یہ کی ہے کہ ہر حال میں تقوی اختیار کیا جائے، اللہ کا خوف ہر وقت دل میں ہو، ہر کام کرتے وقت تنہائی میں سب لوگوں کے درمیان جو تقوی ہے وہ موجود رہے. اور پھر تقوی کی ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں اور اپنے آپ کو درجہ بدرجہ کمال تک لایا جائے تقوی کے دل میں اور اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہوئے. پھر آ جاتا ہے برائیوں سے بچنے کے لیے مسلسل نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، کہیں میرے اخلاق میں کمی تو نہیں آ گئی، میں نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر دیا، اللہ کی باندھی ہوئی حدیں تو نہیں توڑ دی. پھر توبہ استغفار ہے اور پھر نیکیوں کی کثرت کی جائے، کیونکہ آخرت میں جب میزان میں ڈالا جائے گا تو نیکیاں ہی ہوں گی. کل بات سے متعلق کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، فوراً اصلاح کی جائے، حسن سلوک ہر حال میں کیا جائے، چاہے کوئی ہمارے سے اچھا کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ہمیں اپنے اخلاق کو واچ کرنا ہے. عبادات کی جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کی کردار کو سنوارا جائے. اور نیچے امپورٹنٹ ہے کہ دعوت کا کام کرنے والوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے رویے سے کہیں لوگ دین سے دور نہ ہو جائیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں آتی ہیں ہلکا مطلب اور کسی گیدرنگز کے اندر، اور لیکن پھر وہاں پہ ایسے
دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ پھر بہنیں جو ہیں وہ گھبرا جاتی ہیں، پھر یہ کہتی ہیں دین کی بات تو بہت کرتے ہیں لیکن اپنے اخلاق ویسے نہیں ہیں. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ تھرڈ نیکسٹ حدیث کی طرف چلتے ہیں. آپ میں سے کوئی بہن اس کو پڑھنا چاہیں گی؟ السلام جی. تمہاری رفت جی پڑھیے. عن عبد العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذ سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح وفي روایت غیر الترمذی احفظ اللہ تجدہ امامک وتعرف الى اللہ في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك وعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. حضرت ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کا دھیان رکھو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد رکھو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، جب بھی سوال کرنے کی نوبت آئے تو اللہ ہی سے سوال کرو، جب مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی سے مدد مانگو، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اگر ساری امت اس غرض سے جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر سارے لوگ اس غرض سے جمع ہو جائیں کہ تمہیں نقصان پہنچائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. فیصلے لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفوں کی تحریر سوکھ چکی ہے. ترمذی کے علاوہ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں اللہ کا دھیان رکھو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے، آرام اور راحت کے زمانے میں اللہ کا خوب دھیان رکھو وہ سختی کے زمانے میں تمہارا دھیان رکھے گا، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جو مصیبت تم سے ٹل گئی ہے وہ تم تک پہنچنے والی ہی نہ تھی، اور جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ تم سے ٹلنے والی ہی نہ تھی، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ مدد صبر سے وابستہ ہے اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور یہ بھی یقین رکھو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جزاک اللہ خیر سسٹر، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اس حدیث کو اب دیکھ لیتے ہیں. اس کا عنوان جہاں پہ ہے بہترین توقع. حدیث کے جو راوی ہیں وہ ہے عن ابی العباس عبداللہ بن عباس. تو حضرت ابو العباس یہ جو ہے عبداللہ بن عباس آپ کے جو چچا حضرت عباس ہیں ان کے بیٹے تھے، تو یہ آپ کے چچا زاد بھائی بنتے ہیں. حضرت ابو عباس عبداللہ بن عباس آپ کو میں نے بہت سٹارٹ میں بتایا تھا کہ 3 عبداللہ ہیں جن سے کہ جو حدیث بہت مروی ہیں اور جن سے فقہ کے لیے بھی بہت سی حدیث لی جاتی ہیں. عبداللہ بن عباس ان میں سے ایک ہے. کسی کو باقی 2 نام یاد ہیں؟ ایک تو عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود، ایک عبداللہ بن مسعود جی، اور ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن عمر. بالکل جزاک اللہ خیر. یہ 3 عبداللہ ہیں جن سے کہ جو حدیث کی بہت سی آگے فقہی برانچز بھی نکلی ہیں. اور عبداللہ بن عباس جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو کہ کیا رہتا ہاں جی آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے تھے، اور آپ حضرت میمونہ کے بھانجے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت ہجرت سے آپ تقریباً 3 سال پہلے پیدا ہوئے تھے حضرت عبداللہ،
और इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर चबाकर अपने लाबे दहन से इन्हें चिताया था और फिर आपके लिए दुआ भी की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक जगह आता है कि 2 दफ़ा दुआ की थी। एक दफ़ा आप हज़रत जो वहाँ से मैं वो सोच रही हूँ कि छोटे से होंगे, पानी उसका वज़ू का पानी लाके पहले से तैयार करके रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो गले से चिमटा लिया और उस वक़्त उन्होंने दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा फ़क़्हिहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला इसको दीन की देना समझ दीजिएगा। फिर इसी दफ़ा एक दफ़ा और आपने उनको गले लगा के दुआ की थी कि अल्लाह ताला इनको जो है वह हिकमत अता करना। तो एक जगह ये दुआ मिलती है कि उसी वक़्त दुआ की थी कि अल्लाहुम्मा बारिक फ़ीही वंशर मिन्हु व अल्लिमहुल हिकमा, क्या अल्लाह तू इस बच्चे में खैर और बरकत अता फरमा और इसे इल्म दीन को आम कर फरमा दे। और एक जगह यह आता है कि अल्लिमहु वत्तावील, के तफसीर का इल्म दे दे। और सुभान अल्लाह, इनको जब लक़ब दिया गया था वो तर्जुमानुल कुरान का दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुरान का कहते हैं इससे बेहतर तफसीर कोई नहीं कर सकता था इनके बारे में। और आप देखिए, सोचिए कि ये 3 साल पहले हिजरत के पैदा हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो आप तकरीबन 13 से 15 साल के बीच की कोई उम्र थी। तो ये हदीस जो रवायत वो कर रहे हैं ये बहुत यंग एज में कर रहे हैं। तो इसमें और इनके बारे में मैं यही पढ़ रही थी, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद तो इन्होंने एक सारी सहाबी से कहा कि चले आए बैठ के हम जो पढ़ना शुरू करते हैं ना हदीस का, कुरान का। तो उन सारी सहाबा ने कहा कि अच्छा ये वक्त आ गया है कि अब हम मतलब छोटे बच्चों से सीखेंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास उसके बाद उन्हें इतना जुनून हो चुका था हासिल करने का, इल्म का, हदीस का, कि वो खुद फरमाते हैं कि मुझे पता चलता था कि अच्छा अगर कहीं पर किसी को कोई बात मालूम है तो मैं वो बात मालूम करने के लिए उनके घर तक चला जाता, और अगर वो सहाबी जो आराम कर रहे होते तो मैं बाहर उनके दरवाजे के ऊपर ही सर रख के लेट जाता, यहाँ तक कि मैं मट्टी से भर जाता। अब सोचें, सुभान अल्लाह, क्योंकि वहाँ की बात हो रही है अरब की, डेजर्ट की, कहते मट्टी से भर जाता। सहाबी बाहर आके मुझे कहते हैं तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई हो ना, यानी कजन थे। इतने मतलब वो उनकी हालत ऐसे हो जाती थी। फिर वो आते और उनको फिर वो हदीस वो सुनते या तो कुरान के बारे में समझते। तो इसलिए आपको मुफस्सिरुल कुरान भी कहा जाता है, तर्जुमानुल कुरान भी कहा जाता है। यहाँ पे अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 नसीहतें की हैं। इन 4 नसीहतों में से 8 बातें निकलती हैं, तो उसको हम देखेंगे। फिर कुछ जगह पे इसी हदीस का जो उन्वान है वो दिया गया है तौहीद, किस जगह पे इसका उन्वान दिया गया है कि तौहीद और उसकी आलमगीरी हैसियत। तो तौहीद पे यहाँ पे बात होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहा, बल्कि पहले वो बता रहे हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कह रहे हैं कुन्तु खल्फन नबी यौमन फ़क़ाला, कहते कि मैं एक रोज नबी के पीछे था। अब नबी के जो पीछे था तो इसको भी उन्होंने कहा है कि या तो आप चल रहे थे पीछे पीछे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साथ ऊँटनी में पीछे बैठे हुए थे। तो ये यहाँ पे आता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, या गुलाम इन्नी कलिमात, उन्होंने कहा कि या गुलाम यानी ए बच्चे, जैसा टीनेजर लिखा भी हुआ है साइड पे। असल में जो 10-12 बच्चा जब तक बलूगत से पहले के बच्चे को वहाँ पे या गुलामों कहा जाता है। इन्नी मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया है, छोटे बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जो किया है, फिर उसको कहा है कि मैं तुम्हें चंद कलिमात सिखाता हूँ, चंद बातें सिखाता हूँ। तो अब क्या हो गया, बच्चा जो है वो मुतवज्जो हो गए, मतलब हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो है वो मुतवज्जो हो गए हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पे निकल आते हैं। एक तो
بچوں سے جب بات کرنی ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ بات شروع کر رہے ہیں اور پھر ہم کہیں گے دیکھو سنا نہیں میں آپ سے کیا کہہ رہی تھی. نہیں, آپ اس کو بلائیں گے, اس کی توجہ حاصل کریں گے, اس کو پھر فوکس کرنے کے کہیں گے کہ میں تمہیں کوئی بات بتا رہی ہوں. جس آپ سے کا یہاں پہ طریقہ ہے. اس کے بعد آپ سے فرماتے ہیں کہ احفظ اللہ یحفظک, کہ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت کرو گے تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہاں پہ آیا ہے کہ اللہ کا دھیان رکھو تو وہ تمہاری حفاظت کرے گا, لیکن احفظ سے ورڈ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت. اب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا کیا مطلب آ جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو بھی حلال اور حرام احکامات عبادات کی جو بھی ہمارے لیے باؤنڈریز سیٹ کی ہیں, ان باؤنڈریز کی حفاظت کرنا. جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے احکامات دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدود اللہ ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تقربوها, کہ اس کے پاس تک نہ جانا. 3 چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. فرائض کی ادائیگی آ جاتی ہے, ہر احکام کو مانا, جو کچھ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس نے زبان کی حفاظت کی اور جو ڈانگوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کی تو جنت میں جائے گا. تو یہ دونوں چیزیں کیا آ جاتی ہیں, خود کو گناہوں سے بچانا. تو اللہ تعالیٰ کی حدود میں یہ آ جاتا ہے خود کو گناہوں سے بچایا جائے. نیک اعمال کی برکت سے کتنی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اور بندہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کو پکارتا ہے. ہجرت مدینہ کے وقت جب کفار آپ کو تلاش کرتے ہوئے قریب پہنچ گئے تھے تو آپ نے حضرت ابوبکر کو کہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرے اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس لیے اللہ پھر آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو آگے پھر آتا ہے کہ اچھا اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کا دھیان رکھو, اللہ کو یاد رکھو. اللہ کا دھیان کب ہم رکھیں گے؟ حلال و حرام کے وقت رکھیں گے, اپنے معاملات کے میں رکھیں گے, کہ ہر وقت جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے اتق اللہ والی, کہ اللہ کو جس سے ہم ڈریں گے یاد رکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں گے. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کا دھیان رکھنے میں, اللہ کی حفاظت کرنے میں ہمیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہوں گی, اپنے صفائی اور پاکیزی کا دھیان رکھنا ہوگا, اپنے آنکھوں کانوں زبان کی حفاظت کرنی ہوگی, اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچانا ہوگا. ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ حلال طریقے سے ہوں گے, اور اپنے دل کی حفاظت کرنی ہوگی, ہمیں اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا. ابن رجب جنہوں نے کہ امام نبی کی حدیث کی شرح لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے مال کی حفاظت کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ہم خیال رکھتے ہیں, صحت کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, گناہوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے. ایمان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں جہاں پہ مطلب ایمان کے متزلزل ہونے کا ڈر ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی دل کو مضبوط رکھتے ہیں. صحت کی حفاظت ہوتی ہے اور خاندان کی حفاظت ہوتی ہے, جس طرح کہ سورہ کہف میں ملتا ہے نا کہ وہ 2 یتیموں کا مال کی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے جب دیوار بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ابوہما صالحان ان کے. اور ایک جگہ بہت خوبصورت چیز میں پڑھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ جو چیزیں ہماری تابع ہیں وہ ہماری اطاعت کرنے لگتی ہیں. اس کے اندر کیا آ جاتا ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا پھٹ جانا. اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ ان کی چیزیں بھی ان کی اپنی اطاعت نہیں کرتی. کسی کا قول ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہوں تو اس کا اثر اپنے خادم اور اپنے سواری کے جانور کی خصلت اور عادات کے بگڑ جانے میں محسوس کرتا ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی اولادوں کی حفاظت کرے, لیکن نافرمانی کی حالت میں نافرمان اولاد اللہ کو یاد رکھے گا تو ہر جگہ اس کو اپنے سامنے پائے گا. اب اللہ کو یاد رکھنے میں ہم نے وہی دیکھ لیا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے, تو اگر اللہ یاد رہے گا تو اصلاح اور فلاح کی غیب سے ہمیں ہیلپ ملتی رہے گی. ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تنہائی میں آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ تو انہوں نے کہا انا جلیس من ذکرنی, میں اس کے پاس ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے. تو اس دونوں چیزوں کے اندر جو ہے اللہ کی یاد اور اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے. اذا سألت
फस्अलुल्लाह, कि जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से ही मांगो। तो जब सवाल करने में क्या आ जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगना। तो यहाँ पे फिर किस चीज की अहमियत आ जाती है, दुआ की। कि जब कोई चीज, कोई मदद हमें कुछ चाहिए, बल्कि अगला ही साथ ही कर देते, जब तुम इस्तिआनत मांगो तो अल्लाह ताला से ही इस्तिआनत मांगो, यानी अल्लाह ताला से ही मदद मांगो। तो हम अपनी नमाजों में 5 वक्त मुसलसल अल्लाह ताला से कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम यही दुआ मांगते हैं, और फिर दुआ इबादत है, अल्लाह से दुआ करना। अब चूंकि इस हदीस को तौहीद के अंदर भी लाया जाता है, तो पहले जो हमने अभी बातें की हैं उसको कहते हैं कि इसमें हम अल्लाह ताला की वहदानियत को बात करते हैं और शिरक से खुद को पाक करते हैं। फिर जब दुआ मांगते हैं तो हम तौहीद दुआ करते हैं, क्योंकि दुआ तौहीद के बुनियादी अरकान में से है कि हम अल्लाह ताला से ही मांगते हैं। तो यहाँ पे सारा दुआओं का आ जाएगा, और जो हमने दुआओं के ऊपर भी पिछली हदीस के अंदर बात की हुई है। और मांगने के अंदर 2 चीजें आती हैं। एक जो मांगना होता है वो ये होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही जिसमें मदद कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस्तानत बिला असबाब, यानी वो वसाइल जो कि सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही अता कर सकते हैं, जैसे कि इल्म दीन, कुरान और सुन्नत का फहम, ये आपकी बुक में है, रूहानी बीमारियों से शिफा, दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से नजात, बारिश और फसलों की पैदावार। एक तो ये इस्तानत है, ये अल्लाह ताला ही करेंगे। एक इस्तानत वो है जिसमें हमें बहरहाल किसी इंसान की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो दुआ के साथ हमें दुआ भी चाहिए होगी। तो दूसरी इस्तानत जो होगी वो किसी न किसी सबब के तहत होगी, जिसे कहा गया है इस्तानत तहतल असबाब, जिसमें ज़ाहिरी और मादी ज़राए काम आते हैं, जिस तरह की अभी एग्जाम्पल दी। अच्छा, फिर ये है कि जब मांगे, एक हदीस मिलती है ना कि छोटी चीज भी मांगे तो अल्लाह ही से मांगे। यानी जूते का अगर तस्मा भी टूट जाए तो क्या है, मांगना हो किससे मांगे, कि अल्लाह ताला से मांगे। और जब हम दुनिया में किसी की हेल्प लेते हैं तो हमारे जो है हमारे जहन में ये हो कि अल्लाह के सिवा ये कर कोई नहीं सकता, लेकिन अल्लाह ताला इसको हमारा जरिया बनाएगा दुआ मांगने के हवाले से। और जिस तरह हम इस बुक में भी मेरा हाल है कि जिस तरह सूरह बकरा में भी आता है कि इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो कहे मैं करीब हूँ, अजीबु दावत दाई इज़ा दान, और जब वो कुछ मांगते हैं तो मैं सुनता हूँ और मैं जवाब देता हूँ। सूरह गाफिर में आता है रब्बुकुम, और तुम्हारा रब, वक़ाल रब्बुकुम, तुम्हारा रब कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मुझे ही पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ। और सूरह यूनुस में यहाँ मैं देख रही थी कि आपके अगर पास बुक है तो यहाँ पे उन्होंने आया गलत लिखी हुई है, 1 और 2 आया लिखी हुई है, वो 1 और 2 आया नहीं होगी, बल्कि अच्छा मेरा ख्याल है कि ये जो है ना पुराना वर्जन है, इसमें कुछ चीजें नहीं लिखी। अच्छा, तीसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं। तीसरी चीज जो है वो अब जो आ रही है वो ये आ रही है, और जान ले कि अगर उम्मत यानी सारी दुनिया जमा होकर तुझे कोई नफा पहुंचाने की कोशिश करे तो इसके सिवा कोई नफा नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ताला ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है। और अगर सारी उम्मत जमा हो जाए कि तुझे कोई नुकसान पहुंचाए तो इसके सिवा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिख दिया है। कलम उठा दिए गए और सहीफे खुश्क हो गए। अब यहाँ पे इस नसीहत में इसका लिखा है 2 बातें मोमिन को बताई गई हैं, एक है अल्लाह पर तवक्कल और दूसरा है तकदीर। अल्लाह पर तवक्कल क्या है? अल्लाह पे तवक्कल यही है कि इंसान को जब अल्लाह पे यकीन होता है और उसको पता होता है कि जो कुछ भी होगा, मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही ने करना है, और अल्लाह बेहतरीन जो अमल है वो हमारे ऊपर करेगा, ये तवक्कल हो जाता है। और यही तकदीर आ जाती है, यानी जहन में ये रखना मुख्तार कुल सिर्फ अल्लाह है, इसके फैसले को कोई नहीं उल्ट सकता, उसकी लिखी हुई तकदीर को कोई नहीं फेर सकता। और ये सब कुछ जो अल्लाह ताला ने जिन सहीफों में लिखा है, जो हमने पिछली हदीस में पढ़ा है, वो सूख गए हैं, ठीक है। और तकदीर जो है उसको कोई बदल नहीं सकता सिवाय कुछ चीजों के, जिनमें दुआएं हैं और नेक अमाल है। आपकी बुक के अंदर ही लिखा हुआ है कि
कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो ज़मीन में या तुम्हारे अपने नफ्स पर नाज़िल हुई हो और हमने इसको पैदा करने से पहले एक किताब नविश्ता तकदीर में लिख कर रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। और यहीं पे फिर यहाँ पे आता है हाँ जी आ गया ना आयात सूरह यूनुस 102 और 107। बेसिकली ये जो आया 106 है जिसको उन्होंने यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, क्योंकि सूरह यूनुस की आया 106 और 107 में है कि और खुदा को छोड़कर उसको मत पुकारो जो तुझको ना तो कोई नफा पहुंचा सकते हैं ना कोई जरर। सो अगर तू ऐसा किया तो तू ज़ालिमों में शुमार होगा, और अगर तुझे अल्लाह कोई तकलीफ पहुंचा दे तो इसके सिवा कोई इसे दूर करने वाला नहीं है, और वो अगर तुझको खैर पहुंचाए तो उसके फजल को कोई हटाने वाला नहीं है। वो अपना फजल अपने बंदों में से जिसे चाहे पहुंचा दे और वो गफूर रहीम है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ताज्जुब की बात है कि इस अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हिदायत मौजूद होने के बावजूद हजारों लाखों मुसलमान तकदीर पर ईमान रखते हैं और कब्रों, दरगाहों, ठग, पीरों, फकीरों और आस्थानों के दरों पर ठोकरें खाते हैं, उनसे अपनी मुरादें मांगते हैं और शक में मुब्तला होकर अपने ईमान को कमजोर करते हैं। तिरमिज़ी की एक और हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक दफा हम लोग मस्जिद नबी में बैठे कज़ा और कदर के मसले में बहस मुबाहसा कर रहे थे। इसी हालत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ ले आए और हमको ये बहस करते देखा तो आप बहुत गज़बनाक हुए, यहाँ तक कि चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया। इस कदर सुर्ख हुआ कि मालूम होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारों पर इनार निचोड़ दिया गया है। फिर आपने हमसे फरमाया, क्या तुमको यही हुक्म किया गया है कि मैं तुम्हारे लिए क्या यही पैगाम लेके आया हूँ कि तुम कज़ा और कदर के जैसे अहम और नाजुक मसलों पर बहस करो? खबरदार, तुमसे पहले उम्मतें उसी वक्त हलाक हुई जबकि उन्होंने इस मसले में हुज्जत और बहस को अपना तरीका बना लिया। मैं तुमको कसम देता हूँ, मैं तुम पर लाजम करता हूँ कि इस मसले में हरगिज़ हुज्जत और बहस ना किया करो। कि और हमने पहले भी कहा था कि तकदीर ऐसी चीज है जिसको समझना मुश्किल है, उस पर यकीन करना ईमान का हिस्सा है, तकदीर पे ईमान करना। उसके बाद अब आगे चलते हैं, कुछ हदीस लंबी है, मुझे ये था कि मैं इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी इसको खत्म करूंगी। तो आगे आया है कि तिरमिज़ी ने रवायत किया है, हसन सही हदीस है कि एक जगह मतलब तिरमिज़ी के अंदर जब ये हदीस आई है कि अल्लाह को याद रखे तो उसे अपने सामने पाएगा, खुशहाली में अल्लाह ताला से जान पहचान रख, तेरी तंगदस्ती में वो तुझे याद रखेगा। सुभान अल्लाह। और ये बात भी याद रख के जो मुसीबत तुझसे टल गई है वो तुझे पहुंचने वाली ही नहीं थी, और जो मुसीबत तुझ पर आई है वो टलने वाली ही नहीं थी। ये वाला जो टुकड़ा है, ये जो अभी हमने कवर किया उसके अंदर ही आ जाता है। फिर नेक्स्ट बात जो आती है, और जान ले के कामयाबी सब्र के साथ है, फरागी और कुशादगी तकलीफ के साथ और आसानी तंगी के साथ रखी गई है। इन्नमल उसरी युसरा। तो जहाँ पे पहले ही कहा कि हर हाल में अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांग, आराम हो या मुसीबत हो अल्लाह को याद रख। और हमें पता है कि जब हम आराम में होते हैं, बल्कि जब मुसीबत पे होते हैं तो हमारी नमाजें भी लंबी हो जाती हैं और हमारी दुआएं भी लंबी हो जाती हैं। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला राहत देते हैं तो क्या होता है कि हमारी लंबी लंबी नमाजें छोटी छोटी नमाजों में बदल जाती हैं और हमारी लंबी लंबी दुआएं छोटी छोटी दुआओं में पड़ जाती हैं। सूरह यूनुस में आता है कि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वो हमको पुकारने लगता है, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी। फिर जब उसको तकलीफ हम घटा देते हैं तो फिर वो अपनी हालत पर आ जाता है, गोया उसने हमको इससे पहले इस तकलीफ के हटाने के लिए पुकारा ही नहीं था जो उसको पहुंची। सूरह ज़ुमर में आता है जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हुए उसे पुकारने लगता है। फिर जब अल्लाह इसको अपने पास से नेमत अता फरमा देते हैं तो जिसके लिए वो पुकार रहा था उसको भूल जाता है, खुदा के लिए शरीक बनाने लगता है ताकि अल्लाह की राह से गुमराह करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि मुसीबत पे अल्लाह को याद रखें, और ये बंदगी के खिलाफ है कि जब मुसीबत खत्म हो जाए तो फिर हम अल्लाह ताला को भूल जाएं। हज़रत सलमान फारसी का इरशाद है कि जब बंदा चैन और खुशी के ज़माने में दुआ करता है और जब मुश्किल चैन और खुशी के हाल में दुआ करते हैं तो फरिश्ते कहते हैं, उसकी सिफारिश करते हैं, क्योंकि वो पहचानते होते हैं उन दुआओं को लेकर अल्लाह के पास जा रहे होते हैं, तो उसे पता होता है कि बंदा चैन और खुशी में भी दुआ कर रहा है। तो जब
मुसीबत आती है और मुसीबत के वक्त वो शख्स दुआ करता है तो फिर अल्लाह सुब्हाना जो फरिश्ते हैं वो उस आवाज़ को नहीं पहचानते, वो कहते हैं कि ये तो आवाज़ हमने पहले नहीं सुनी हुई। और फिर उसी हदीस में सलमान फारसी के इरशाद में आता है कि फिर वो बेतवज्जी बढ़ते हैं और दुआ कबूल होने की सिफारिश नहीं करते। और आपको पता है अल्लाह सुब्हाना तआला को वो शख्स पसंद है जो कि दुआ मांगने वाला हो, हाथ उठाने वाला हो। और इसके साथ ही यहाँ पे फिर सब्र की बात आ जाती है कि अल्लाह ताला इस हदीस के अंदर आता है सब्र। तो सब्र हमें पता है क्या है, लेकिन कोई बहन अगर इस पे सूरह बकरा की आयत है जो कि आप गुजरी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, तो चूंकि मैं बोल रही हूँ तो सब्र के ऊपर कोई बहन आके बताएं कि सब्र क्या है और किस किस चीज में सब्र होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको नहीं कही। सब्र का माना जो है, जैसे दो किस्म की सब्र होती है, एक मुसीबत के वक्त और आप एक जो है आपके पास नेमतें हों उस वक्त। तो मुसीबत के सब्र ये है कि आप उस हालात में भी अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचें, जो फराइज हैं उसको करते रहें और उसी तरीके से जो हुदूद अल्लाह है उसके अंदर जो है वो उसको कैरी ऑन करें और अल्लाह से खूब मांगे ये चीज़ें। और जो नेमतों के साथ है कि उस नेमतों का शुक्र अदायगी करें, उसका सही इस्तेमाल करें और जो अल्लाह ताला ने उन नेमतों के हवाले से हुक्म दिया है उसको करें और हद से ज़्यादा उसमें ना करें। अल्लाह खैर। बिल्कुल ये देखिए लिखा हुआ है सब्र के मानिए जम जाना, टिक जाना और साबित कदम रहना। शरई मानी के लिहाज से सब्र की 3 किस्में हैं, अल्लाह की अताअत और इबादत पर कायम रहना, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों से बचना और इस पर आखिरी वक्त तक कायम रहना, और मुसीबत के वक्त जज़ा सज़ा ना करना, यानी रोध होने के बाद सारा शिकवे शिकायत करने के बाद कहना कि हम सब्र कर रहे नहीं। जब रंज पहुंचता है तो सबसे पहला काम यही है कि कहें अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली चीज़ थी। फिर इसमें ये बात भी बताई गई है कि इन्नमल उसरी युसरा इन्नमल उसरी युसरा के मुश्किल परेशानियों के साथ के बाद जो है आसानी ज़रूर आती है। और जब इन आयात से गुजरेंगे तो यकीनन आप देखेंगे कि अल उसर जो है वो मारिफा है और युसरा जो है वो नकिरा है। तो अल उसर जो है वो खास है, वो एक है, पर युसरा जो है ना आसानियाँ वो बहुत ज़्यादा है। तो सुभान अल्लाह, वो जो आयात की जब हम तशरीह करते हैं तो फिर पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू क्या बता रहे हैं कि मुश्किलें थोड़ी आएंगी लेकिन उसके बदले में अल्लाह ताला आसानियाँ बहुत देंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक तरतीब पे एक और बात भी रखता हूँ। जो भी हमने पहले पढ़ा कि नफ़ा और नुकसान जो है वो मुकद्दर है, ठीक है। तो असल में जब मैं ऑनलाइन ऐसे जाती हूँ तो मुझे ज़्यादा होता है, मैं घूम जाती हूँ। तो आराम और चले हम हदीस के तर्जमे की तरफ ही चले जाते हैं। यहाँ पे जब आ जाता है कि जो नफ़ा और जो नुकसान है वो मुकद्दर है, तो ना तो दुनिया के सारे लोग मिलकर कोई नफ़ा पहुँचा सकते हैं और ना दुनिया के सारे लोग मिलकर कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके हवाले से इमाम अहमद मुस्नद इमाम अहमद के अंदर अबू दरदा से रवायत कि आपने फरमाया कि बुलशबा हर चीज़ की एक हकीकत होती है, कोई बंदा ईमान की हकीकत को नहीं पहुंच सकता जब तक यकीन के साथ ये ना जान ले कि जो उसे पहुंच गया है वो चूकने वाला था ही नहीं और इससे टल गया है वो इसको पहुंचने वाला था ही नहीं। ठीक है, तो अब बात का अख्ताम मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ कि ये चीज़ अब हमारे माशरे में ये चीज़ इसके बारे में हमारा ईमान जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है। हम समझते हैं कि हमें दुनिया की जो चीज़ें हैं वो हमें चाहिए कि हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। उसकी मिसाल ये है कि हम बिजनेसेस ऐसे खरीदते हैं, हम कहते हैं कि वहाँ पे अगर लॉटो ना रखा गया तो बिजनेस नहीं चलेगा। वहाँ पे अगर हमने उन बिजनेस में अल्लाह माफ़ करे एक आयल शराब की ना रखी तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो ऐसे मौक़ों पे ऐसी चीज़ों के मतलब या झूठ बोल के अगर हमें चीज़ ना बेची तो हमारी चीज़ नहीं चलेगी। तो तब जहन में ये होना चाहिए, हमें अपने बच्चों के जहन में ये बात होना चाहिए कि जो नफ़ा और नुकसान जो है वो अल्लाह के हाथ में है, रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। तो अब इसी वक्त यही वजह है कि उस वक्त में सहाबा कराम के ज़माने में
जब अजान होती थी तो उनको ये नहीं फिक्र होता था हमारे ग्राहक चले जाएंगे, वो अपनी दुकानें बंद करके नमाज के लिए जाते थे। जब जिहाद का हुक्म होता था तो उन्हें अपने सामान की फिक्र नहीं होती थी, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जिहाद पे जाते थे, क्योंकि उन्हें तकदीर पर ईमान था अपनी, और उनको ये यकीन था कि जो भी नफा हमें मिलेगा, जो भी नुकसान होगा, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ही होगा। अच्छा जी, इसके अंदर हम देख लेते हैं कि चूंकि असल में ये है कि अच्छा, इस हदीस के बारे में मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने इनकी तशरीह लिखी है इस हदीस की, उन्होंने इमाम नववी की सारी हदीस की तशरीह की है, लेकिन इस हदीस, क्योंकि इतनी लंबी हदीस है और इसके इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं कि अभी अगर हमें हमारे पास टाइम होता तो हम एक एक पॉइंट को हमें पूरा वीक लगता करने में। तो इमाम इब्न रजब ने जब इसकी शरह लिखी है ना, तो उन्होंने इसको सेपरेट, इसकी बुकलेट फॉर्म में इसकी जो है शरह की है। सुभान अल्लाह। तो पॉइंट्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे है। एक तो मैं इसमें ये बताना चाहूंगी कि तौहीद इसमें जिक्र आया है कि तौहीद का अकीदा रखना और उसके तकाजे पूरे करना फर्ज है। तौहीद दुआ की बात हुई है, इसके अंदर तौहीद इस्ताअनत की बात हुई है। नफा और नुकसान का इख्तियार अल्लाह के पास है, तौहीद इख्तियार है, ठीक है। तो और ये इसके ऊपर इसलिए इसको तौहीद की बात इसमें बहुत ज्यादा आई है। बच्चों को नौउम्री में ही जिंदगी और दीन के अहम असूलों के बारे में बताया जाए। पॉइंट्स आपने नोट की है। अल्लाह की बांधी हुई हदूद की हिफाजत की जाए, क्योंकि फिर अल्लाह की हिफाजत में आना है। सिर्फ मांगना है तो अल्लाह से मांगा जाए, चाहे छोटी से छोटी चीज हो। लोगों से ऐसा कुछ ना मांगे जो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने का इख्तियार हो। अगर बीच में हमें इस्ताअनत चाहिए असबाब वाली, तो फिर भी हम अल्लाह ताला से दुआ करते हुए ही उनसे हेल्प मांगेंगे। दुआ को पूरे अदाब के साथ और यकीन से मांगा जाए। टाइम नहीं है, लेकिन मैंने सोचा यह था कि आप लोगों से पूछूंगी। अल्लाह पे पूरा तवक्कल रखें, मुश्किल हो या आसानी अल्लाह से रुजू करें। तकदीर पे राजी रहना सीखें, जो कि जो भी हदीस आपके साथ मैंने शेयर की थी इसी में बेहतरी है। और सब्र करते हुए जिंदगी के मामलात को रिज्यूम करें। तो ये हमारी हदीस जो है वो ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि जो हम पढ़ते हैं वो हम अपनी ज़िंदगियों में इसको डाल सकें इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, उन्होंने कहा, आयशा ने कहा है कि हदीस को विद रेफरेंस और सूरा नंबर के साथ लिखें। अच्छा, थोड़ा सा स्पीड से नोट्स करना मुश्किल होती है, तो अगर हम हदीस नंबर, रेफरेंस नंबर लिख लें तो फिर बाद में वो रेफर करना आसान हो जाएगा। तो बस जो है इंशाल्लाह ताला बंद करती हूँ रिकॉर्डिंग को, और उसके बाद फिर दुआ करते। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।